us start. So before proceeding, we must understand what is the structure of non-profit organization in India. So in India, and particularly in some part of in some states, there are three types of structure of non-profit organization, that is charitable organization. What screen guy? Hello. Praveen ji, shall I continue? Hello. Yes, sir, you can continue, please. So there are three types of organization that covers under non-profit organization in India. One is trust, second is societies registered under section 25 of section Society Registration Act 1930, and third is section 8 companies. Earlier it was known as section 25 companies Act 1956. So Income Tax Act gives all categories equal treatment. Maybe it's a trust, maybe it's a society, or maybe a section 8 company. They will be getting exemption under section 11 to 13, and they will also be entitled for getting ATG certificates, so that any donor who are donating to these three type of organizations will get exemptions under relevant sections of ATG or 11 to 13. Next. So now here is the comparison. What is trust, what is society, and what is section 8 company? Because these terms trust and society, this is normally followed in Maharashtra. So what are the difference? Trust is created under either relevant state tax act, जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 विच इज एक्ट प्रिवेल्ड इन महाराष्ट्र, जहां पे भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जहां पे सेक्शन 8 के अंदर भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं. तो ये तीन अलग अलग एक्ट हैं जिसके तहत आप अपने ट्रस्ट को या सोसाइटी को या कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं. एंड ज्यूरिडिक्शन लाइज विद, इन केस ऑफ ट्रस्ट इट इज लाइज विद चैरिटी कमिश्नर, इन केस ऑफ सोसाइटी इट इज रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी विच इज essentially controlled by Charity Commissioner in Maharashtra, and in case of company, Registrar of Companies. In registration, trust gets registered as a trust, society gets registered as a society. But in Maharashtra, if you are registering yourself as a society, you are also eligible and you are also getting certificate as a trust. So you are having two certificates in your hand, as a society and as a trust, in case of Maharashtra only. And in case of a company, you are getting directly certificate of incorporation. What are the documents to be prepared? In case of trust, you need to have trust deed compulsorily. And in case of society, it is memorandum of association and rules and regulations. And in case of company, it's memorandum and article of association. Here, basic difference is, in case of trust deed and in case of memorandum of association and rules and regulations, changes in the case of society is very easy, whereas any change in trust deed is very difficult as per Bombay Charitable Trust Act. So whenever you are recommending any of your client to form a charitable organization, ask them to register as a society under Society Registration Act 1860 or Section 8 company. Do not directly get involved in preparing trust deed, because later on, if you want to change trustee, if you want to modify anything, the scheme is very, very harsh and very, very difficult. And for the purpose of stamp duty, trust deed to be executed on non-judicial stamp paper, maybe 100, maybe 500, it vary from state to state. In case of society, no stamp paper is required. Only you can type your memorandum and rules and regulation on plain paper. And in case of company, no stamp paper required for memorandum and article of association. There are minimum number of members requirements are there. In case of trust, you have to have 2 trustees minimum. Maximum there is no upper limit. In case of society, you need to have minimum 7. Hello. In case of society, you should have minimum 7 managing committee members and no upper limit of number of committee members. And in case of company, minimum 3, no upper limit.
Board of management, there are different names. For the purpose of trust, it is called trustees or board of trustees. For the purpose of society, it is called governing body or executive committee. And for the company, it's called board of directors or managing committee. So all the trusts, all the acts, 3 acts have different set of rules, different set of papers to be prepared. And most beneficial, if we are practicing in Maharashtra, we must go through the route of society. It's very easy. Next. So what are the conditions for a charitable trust to get exemptions under section 11? There are various conditions. So I have listed out. First condition is that the object of the trust is to be charitable purpose, as defined under section 215 of Income Tax Act, or a religious purpose. And any trust can be formed either for charitable or for the religious purpose, depending upon the utility of the person who are creating the trust. The trust should be wholly for charitable and religious purposes, section 11(1)(a). Because this word charitable and religious, इसका सिग्निफिकेंस आगे जाके जब हम सेक्शन 11, 12 और 80G में जाएंगे तब वहां पे ख्याल में आएगा कि इसका दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है. Number 3, the trust income is not includable in the hand of settler donor under section 60 to 63. यानी ट्रस्ट जो बनेगा, that trust should be a trust जो कि सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज ट्रस्ट की रहेगी और कोई भी हाल में वो सेटलर्स के पास वापस नहीं आएगी. It has to be in the hands of trust only. The trust has to be registered under section 12AB. अभी हम सबको मालूम है 12AB एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने इस बजट में. Earlier it was 12AA. So every trust who are registered under section 12AA are eligible for exemption under section 11, and with effect from 1st October 2020, if trusts are registered under section 12AB, then only they will be entitled for exemption under section 11. And all trusts who are registered under section 12AA as on date, they are bound to get their self registered under section 12AB between 1st of October to 31st of December, as per the online procedure which will be shortly available on the portal. And we have to migrate, and under new system we will be getting registration for 5 years. And in case of new trust, initially they will be giving temporary registration for 3 years, and then it will be for 5 years, depending upon the case to case and circumstances. But we must remember, on 1st of October, we have to migrate all the trusts which we are registered under section 12AA to section 12AB. Audit of account of the trust is to be carried out when total income, without giving effect to section 11 and 12, exceeds the exemption limit. An audit report is filed along with return of income. See, in the case of charitable trust who are registered under section 12AA, one point we need to know is that if the gross income of the trust, that means total of income side of the trust, if it is more than 2,50,000, then your accounts are to be audited under section 12. An audit report has to be filed along with audit report has to be filed along with filing return of income before filing due date of the returns under section 139. अगर हम उसको ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो we may be asked not to claim any exemption under section 11 to 13. So audit has to be carried out. लेकिन हमारी इनकम अगर 2.5 लाख के ऊपर है, रिसेंटली अभी मैं जब इनकम टैक्स जा रहा हूँ बहुत सारे ट्रस्ट के केस में, तो एक नया प्रॉब्लम सामने आया है कि आपके ट्रस्ट की साल की रेगुलर इनकम समझिए ₹1,00,000 ही है, और आपने रिटर्न फॉर्म 7 में अपलोड कर दिया क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 to 13. तो सीपीसी क्या करता है, सीपीसी आपके सारे एग्जाम्पशन डिसअलाउ कर देता है, क्योंकि फॉर्म 10 भी वहां उसको दिखाई नहीं देता, और आपको नॉर्मल एओपी करके असेस कर देता है. तो वो उनके सिस्टम में भी फ्लॉ है. इन दैट केस आप कितनी बार भी सीपीसी को आप रेक्टिफिकेशन डालेंगे, आपका रेक्टिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. तो आइडियल तरीका ये है कि मिनिमम 4 से 5 बार आप रेक्टिफिकेशन डालिए, सीपीसी विल रिजेक्ट, and then later on they will push up the file to before the AO.
जो कि हमारे यहाँ के चार्ज में नागपुर में एग्जाम्पशन जो सेक्शन बना है, फिर वो आप जाके एओ को आप समझाएंगे तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख के नीचे आपको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कैंसल्ड अंडर सेक्शन 12AA3। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 to 13। ये थोड़ा नीचे की विंडो हटा दीजिएगा जो दिख रही है, मेरी है क्या विंडो ये? सर यहाँ तो कुछ भी हाँ नहीं ठीक, है। हाँ नहीं ठीक ठीक। और ट्रस्ट इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 13। पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट के असेसमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो है सेक्शन 13, बिकॉज सेक्शन 13 में अगर आप कोई भी बेनिफिट ट्रस्टीज को देते हैं और किसी भी तरह का बेनिफिट मैनेजिंग कमेटी का ड्रॉ करती है तो आपके सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है एंड यू आर बीइंग डिनाइड ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 to 13। नेक्स्ट स्लाइड। So what is charitable purpose? Charitable purpose is defined by section 215. So charitable purpose includes relief of poor या relief of poverty. Second is education. Yoga has been recently added 4-5 years back. Then medical relief, preservation of environment, preservation of monuments or place or object of artistic or holistic historical interest, और एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर हम इन सब ऊपर की चीजों में कवर नहीं भी हो रहे हैं, इवन इफ यू आर डूइंग एनी वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस, तो आप इसके अंदर कवर हो सकते हैं। ये बहुत वाइडर डेफिनेशन है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इसके अंदर भी। तो जो ट्रस्ट इन एरिया में अगर काम कर रहे होंगे, only will be defined as charitable purpose organization and they will be entitled for section 11 to 13 benefit. Next. So what is the definition of charitable purpose? This law was amended in 1516. Law prior to amendment was that the advancement of any object of general public utility was not a charitable purpose if it involves carrying on any activity in the nature of trade, commerce, business, activity of rendering any service in relation to any trade, commerce, or business. If these are the things and gross receipts from that activity is less than 25 lakhs, then you was entitled for section 11 to 13 benefit. Now this definition has been amended. Next slide. In this amended definition, now there are two limbs on this section. First limb is advancement of any object of general public utility is not a charitable purpose if it involves carrying on of any activity in the nature of trade, commerce, or business, any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce, or business. That is the first part. अगर हम कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जिससे कि बिजनेस हम चला रहे हैं और यहाँ हम ऐसी कोई सर्विस दे रहे हैं जो कि प्रॉफिट मोटिंग अर्निंग जैसी लगती है, लेकिन साथ में उसके साथ में फिर उन्होंने अनलेस नीचे दो चीज और दी हैं कि एक्टिविटीज अंडरटेकिंग इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। समझिए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और वो चैरिटेबल हॉस्पिटल अपने यहाँ एक मेडिसिन शॉप भी चलाता है। तो जो आदमी जो पेशेंट उनके आएंगे और वो वहां पे अगर एडमिट होते हैं और उनको वहां पे दवाई अगर रीजनेबल रेट पे मिलती है तो उसको हम कैरिंग ऑन बिजनेस नहीं कहेंगे। ट्रस्ट का काम है हॉस्पिटल चलाना और साथ में दवाई अगर वो उसमें दे रहे हैं तो इट इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो गया। और साथ में इसके अंदर एक एंड क्लॉज और दिया है कि एंड एग्रीगेट रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ टोटल रिसीट ऑफ द प्रीवियस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। साल भर में अगर मेरा 1 करोड़ रुपए अगर टोटल रिसीट आ रहा है तो उसके 20% से ऊपर मेरा अगर नहीं जा रहा है बिजनेस का तो मैं इसमें कवर नहीं होऊंगा एंड आई विल बी एंटाइटल्ड फॉर चैरिटेबल बेनिफिट अंडर सेक्शन 11 to 13. नेक्स्ट स्लाइड। So it applies
only to advancement of any other object of general public utility that we have to bear in mind. अगर हमको कोई किसी भी तरह का इसमें व्यवसाय करना है तो वो ऐसा वही हो सकता है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को, जनरल पब्लिक यूटिलिटी के ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाए. सो फर्स्ट लिव ऑफ इम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट मोटिव वेदर एसेंशियल. यस, अगर एसेंशियल है और अगर प्रॉफिट मोटिव में सरप्लस आ रहा है तो आप बिजनेस में जा रहे हैं, इसलिए आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. बट आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है और आपको सरप्लस जनरेट हो रहा है, खाली जो बचा हुआ सरप्लस है वो आप एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी में अगर आप खर्चा कर रहे हैं, सो यू आर नॉट रनिंग अ बिजनेस, सो यू आर एंटाइटल्ड फॉर बेनिफिट अंडर सेक्शन 11 to 13. नेक्स्ट, activity to be undertaken in the course of actual carrying out of advancement of any other general public utility, that is most important. जो मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, अगर हॉस्पिटल है और साथ में आप मेडिसिन शॉप चला रहे हैं तो चलेगा. और एक्चुअल मीन्स रियल, जेन्युइन एंड नॉट फिक्शनल, नॉट इल्यूजरी. दिस इज द डिसाइडेड बाय दिस केरला हाई कोर्ट in the CIT versus Dalmia Dadi Cement Limited case. So hence the institution should really and genuinely carry out the advancement of general public utility. Any trust जो भी अगर ऐसा काम कर रहा है तो he has to carry out genuinely, एक्चुअल में काम करना चाहिए. और जो एक्टिविटी है, अगर कोई बिजनेस की इसमें साथ में कोई एक्टिविटी आप कर भी रहे हैं तो इट शुड बी अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट सच एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के साथ में होना चाहिए. नेक्स्ट, now we now understood what is charitable purpose. If we are falling under charitable purpose, then we are entitled for all benefit exemption under section 11 to 13. Now most important thing is how to compute. अगर आप पूरा स्कीम ऑफ टैक्सेशन देखेंगे तो जो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन है वो बड़ा सुंदर तरीके से किया हुआ है. हमारी इन 1 से लेके 10 पहले आपके डेफिनेशन क्लॉज हो गया. सेक्शन 10 तक अगर आप देखेंगे तो पूरी एग्जम्पशंस की बात करता है. फिर सेक्शन 11 to 13 बात करता है एग्जम्पशन ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. और उसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे इनकम, आपके सैलरी इनकम हो, चाहे बिजनेस इनकम हो, कैपिटल हो, इसलिए जब भी ट्रस्ट का आपका, इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट सेक्शन जो फॉर्म नंबर, हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा, मुझे भी लगा. अभी ठीक है? यस सर, अभी ठीक है, अभी ठीक है. हाँ, तो इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि फॉर्म नंबर, हेलो यस सर. प्रतीक, हाँ प्रवीण, यू कैन हियर. म्यूट प्रतीक, प्लीज म्यूट. हाँ, सो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आपका कोई भी तरीके का हेड ऑफ इनकम कभी नहीं आएगा. मैं इस सेशन के आखिरी में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटेशन कैसा बनाया जाता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपके पास कोई हेड ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्म नंबर 7 खोलेंगे तो उसके अंदर सारे हेड ऑफ इनकम आपको नजर आएंगे. सो विच इज अ फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सीबीडी. हमने भी कई बार उनको बताया पर आज तक उन्होंने करेक्ट नहीं किया उसको. लेकिन फॉर अवर पर्पस वी नीड टू नो इनकम ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट विल नेवर बी क्लासिफाइड अंडर एनी हेड ऑफ. और ये इसको अगर आप देखेंगे 135 ITR 485 में भी मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही है कि आपके ट्रस्ट के अकाउंट नॉर्मल कमर्शियल मैनर से बनना चाहिए विदाउट क्लासिफिकेशन अंडर द वेरियस हेल्थ सेट आउट इन सेक्शन 14. सेक्शन 13 के बाद सेक्शन 14 आता है और सेक्शन 14 बोलता है हेड ऑफ इनकम क्या होना चाहिए. सी द ब्यूटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन. तो 11 और 13 के बाद 14 आ रहा है और वहां से हेड ऑफ इनकम डिसाइड हो रहा है. इसलिए 11 to 13 के लिए कोई हेड ऑफ इनकम कभी बनेगा नहीं. ये काइंडली मेक अ पॉइंट इन योर माइंड. Number 2, the most important thing is real income is to be taken into account for the purpose of considering the exemption under section 11. Real income मतलब क्या? Real income मतलब जो इनकम आपको मिल गई है
आई विल गिव एग्जांपल। आपकी ट्रस्ट की 1 करोड़ की एफडी थी बैंक में, तो आपको बैंक ने समझिए 7% से 7,70,000 रुपए ब्याज होता है, इंटरेस्ट आपको 70,000 मिला, लेकिन बैंक ने उसको 10% टीडीएस काट दिया 7,000 रुपया। तो आपके अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट किया 63,000 रुपीज, तो आपकी रियल इनकम 63,000 रहेगी, 7,000 का टीडीएस क्योंकि आपको मिला नहीं है, वो जब रिफंड होके आपके पास आएगा, जब एडजस्ट होके आएगा, तब आपकी इनकम में आएगा। इसलिए जब आप कंप्यूटेशन बनाएंगे तो यू मस्ट नॉट टेक दैट टीडीएस इनटू कंसीडरेशन। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। और भी एग्जांपल अभी दे रहा हूं आगे उसमें रियल इनकम के। सो इन रियल इनकम पे आते हैं फिर से। इन व्यू ऑफ बेटर, द लॉस इनकर्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट is also not allowable in computing the income of the trust because of the fact that such loss cannot form part of real income of the trust. आपने 1 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट किया और आपने तो आपको से 90,000 रुपए मिले, तो 2,000 का जो लॉस होगा आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कंसीडर नहीं होगा। ये डायरेक्ट जजमेंट है हिंदुस्तान वेलफेयर ट्रस्ट वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एग्जाम्पशन 201 ITR 564, काइंडली रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं उस समय आपको बोला था, क्यों 11 और 13 के बाद सेक्शन 14 से आगे कोई चीज नहीं जाती है, दैट इज बिकॉज वेयर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 आर रिट्रैक्टेड, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28 कैनॉट बी इन्वोक्ड। यानी जो सेक्शन 17 से लेके जो सेक्शन 56 तक है, वो कोई भी सेक्शन आपके इन्वोक इन द केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इट कैनॉट हैपन। नेक्स्ट स्लाइड। So what are the sections under which you can claim exemptions? There are various sections, but important are 11(1)(a), 11(1)(c) and 11(1)(d). They will decide your nature of income and how to claim the exemption. Let's come on to section 11(1)(a). Income derived from property held under trust wholly for charitable or religious purposes. So to that extent, income is applied to such charitable or religious purposes in India. Whatever income you are deriving, any income you are deriving, it is always deemed कि it is derived always under property held under trust. उसमें आपकी जितनी इनकम आती है, तो you have to spend 85% of the income in order to get exemption under section 11. अगर आपका उससे कम ज्यादा होता तो will come on later on कि 11(2) और 11(1)(a) के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलने वाले हैं। So income has to be derived from property held under trust, section 11(1)(a, क्योंकि 11(1)(a) you will find reference in many places. Then 11(1)(c), income derived from property held under trust for a charitable purpose which tends to promote international welfare in India, in which India is interested. इंटरनेशनल वेलफेयर हम जहां भी प्रमोट करते हैं, अब आपको विदर्भा में तो बहुत रेयर एक कोई ट्रस्ट में, लेकिन बॉम्बे में इस तरह के ट्रस्ट के मैंने काफी काम किए हैं। तो जब आप इंटरनेशनल कोई वेलफेयर का काम करते हैं यहाँ इंडियन ट्रस्ट में बैठ के, तो आपको 11(1)(c) के अंदर आपको इनकम को क्लासीफाई करना पड़ता है, और जितना आपने वो आया हुआ पैसे में जितना पर्पज आउटसाइड इंडिया आपने उसमें लगाया है, खाली आपको उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा, जितना आप नहीं लगा पाए वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 11(1)(d), इनकम इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन made with a specific direction that they shall form part of the corpus of the trust or institution. Any donation with a specific direction कि मैंने ये पैसा आपको 1 लाख रुपए दिया, ये पैसा आप बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, या 1 लाख रुपए दिया इससे आप बच्चों के लिए ग्राउंड डेवलप करेंगे, या 1 लाख रुपए दिया इसके ब्याज से आप फला फला बच्चों को इस तरह की मदद करेंगे। तो these are all called as corpus donation and they are 100% exempted, meaning thereby they are do not form part of even income also. जो आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हैं उसका भी ये पार्ट नहीं होगा। लेकिन इन ऑर्डर टू क्लेम कॉर्पस डोनेशन एज अ कॉर्पस अंडर सेक्शन 11(1)(d), 2 प्री रिक्विजिट हैं। फर्स्ट इज यू मस्ट हैव अ रिसीट, नंबर 2 यू शुड हैव अ डायरेक्शन इन राइटिंग फ्रॉम द डोनर, विच नॉर्मली पीपल लैकिंग। लोग क्या करते हैं, 5 लाख रुपए भेजा है,
कॉर्पस डोनेशन जमा कर लिया, हम भी उसको ऑडिट करके सबमिट कर देते हैं विदाउट सीइंग द लेटर। लेकिन जब कभी स्क्रूटनी होती है या जब कभी किसी तरह का सर्वे होता है और अगर आप वो लेटर प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो द डिपार्टमेंट ट्रीट्स दैट कॉर्पस डोनेशन एज अ नॉर्मल डोनेशन। So whenever there is a classification of donation under corpus, please bear in mind while filing the return or while carrying out the audit of the trust, you must see the donation letter with specific direction from the trust. In computing the 15% of income which may be accumulated or set apart, any such voluntary contribution as are referred to section 12 shall be doomed to be the part of the income. यानी आपके जितने भी कॉर्पस डोनेशन है उससे बाहर हो गए, बाकी जितना डोनेशन आया है उसका 15% आप बिना किसी फाइलिंग के बिना उसके आप कैरी ऑन कर सकते हो और 85% यू नीड टू स्पेंड। अगर 85% स्पेंड नहीं कर पाए तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट, नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। अगर ये मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि सेक्शन 13 इज अ वेरी वेरी ट्रिकी सेक्शन और many a trust loses exemption under section 30 because of the provisions of section 13. Earlier हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ एग्जाम्पशन सेक्शन नहीं था, ऐसे चल जाता था, कोई देखता नहीं था। बट नाउ डेज जब आपका स्क्रूटनी होती है तो ऑफिसर आपकी ये चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। सो बिफोर फाइलिंग द रिटर्न वी मस्ट ऑल्सो सी whether trust has violated any of the condition of section 11 to 12 as directed by section 13. First among is that section 13(1)(a), income of a private religious trust not used for public benefit. आपने एक रिलीजियस ट्रस्ट बनाया, एक प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट बनाया, सेक्शन 11-12 आप बेनिफिट मांग रहे हैं, लेकिन आपने बोला मैंने मंदिर मेरे घर में बनाया है या मैंने मेरी जगह में बनाया है, लेकिन आप बाहर के लोग इसके अंदर नहीं आ सकते। So whenever you are depriving public to take benefit of your trust property, you won't be entitled for the deduction under section 11 to 13. Number 2, 13(1)(b), income of charitable trust created for the benefit of particular religious community. आपका एक ट्रस्ट है और आपने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए यार आपने बना दिया वो ट्रस्ट, तो आपको सेक्शन 11 to 13 के बीच में कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। थर्ड इज 13(1)(c), income or property of charitable religious purpose applied for directly or indirect benefit of person referred to in 13(3). Who are the person in 13(3)? जितने ट्रस्टीज हैं वो उनके रिलेटिव, लीनियरली असेंडेंट और डिसेंडेंट जो लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए अगर हमने कोई भी तरह का खर्चा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया, जैसे अगर मान लीजिए ट्रस्ट एक हॉस्पिटल चला रहा है और ट्रस्टी उसमें एडमिट हुए, नॉर्मल आदमी को फीस समझिए कि 5,000 का बिल आता है और ट्रस्टी को आपने डिस्काउंट देकर 2,500 का बिल दे दिया, तो आपने बेनिफिट दिया अंडर सेक्शन 13, सो योर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 to 13 विल बी विथड्रॉन कंप्लीटली। मैं एक ऐसे ट्रस्ट के केस में भी मैंने रिप्रेजेंट किया था आपको, कोल्हापुर के ट्रस्ट के केस में, जहां पे उस ट्रस्ट ने मात्र 500 रुपया चेयरमैन के किसी पर्सनल कार्ड के लिए खर्चा किया था और सीआईटी ने पूरा का पूरा एग्जम्पशन उनका डिनाई कर दिया सेक्शन 11-13 के केस में। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किसी तरह का 13(3) के लोगों को बेनिफिट हमारे ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए। इफ बेनिफिट इज देयर सो वी मेड प्रॉपर उसका पहले रेक्टिफिकेशन कीजिए, चाहे रिकवरी में उसको ट्रांसफर कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन उसमें खर्चे में कहीं पे क्लेम मत कीजिए, किसी को बेनिफिट मत दीजिए। देन 13(1)(d), एनी इनकम is taxable if funds are invested other than in 11(5). ट्रस्ट के लिए एक बेसिक कंडीशन है कि ट्रस्ट के जितने फंड्स होते हैं दे हैज टू बी इन्वेस्टेड एज पर सेक्शन 11(5). अगर आपने 11(5) के बाहर जाके कोई फंड इन्वेस्टमेंट किए हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 to 13 विड्रॉ हो जाएगा। और इस बात की नोट हमको फॉर्म 10B में भी देनी पड़ती है। अगर आप ट्रस्ट का ऑडिट देखेंगे तो वहां पे सेकंड या थर्ड पेज पे इसके बारे में हमको लिखना पड़ता है कि वेदर फंड्स आर इन्वेस्टेड अदर देन मोड्स ऑफ 11(5), यस और नो। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि लोग नो 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 करके उसके ऊपर टाइप कर देते हैं, नोबडी गोस की 11 के अगेंस्ट गया कि नहीं गया है। फिर वहां जाके असेसमेंट में जब प्रॉब्लम खड़ा होता है तब समझ में आता है कि ये चीज हमने देखी ही नहीं। तो बिफोर फाइलिंग रिटर्न वी मस्ट सी कि 11(5) के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। और एनी फंड इन्वेस्टेड अर्लियर
1983 में जब रूल चेंज हुआ तो कई लोगों ने कुछ कंपनियों के शेयर्स लेके रखे थे, बहुत सारे ट्रस्टों ने। यहाँ तो कम मिलेंगे लेकिन बॉम्बे और पुणे में बहुत ट्रस्ट हैं, और वो शेयर होल्डिंग आज तक चली आ रही है। तो वो अगर आपकी होल्डिंग आज तक चली आ रही है तो आप 11 to 13 के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज सेक्शन 11(4)(a), इनकम फ्रॉम बिजनेस which is not incidental to attainment of objective of the trust or in respect of which separate books of account have not been maintained। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि आप, हेलो, यस प्रवीण, हेलो हेलो, all participants please mute। यस। सो अगर आप कोई ट्रस्ट आपके पास है और वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं करता, समझिए कि आपका एक कॉलेज है और आपने फिर एक उसके अंदर एक स्टार्ट कर दी कि आपने एक छोटा सा बाजार टाइप का या एक छोटा सा क्या बोलते हैं एक ग्रोसरी स्टोर खोल दिया, तो वो उसमें नहीं आता। तो अगर आपने ग्रोसरी स्टोर खोला है तो आपको ग्रोसरी स्टोर की कोई भी इनकम के ऊपर 11 to 13 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन साथ में वो तभी हो सकता है जब आपने उसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की हो। अगर आपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की है तो यू विल लूज एग्जेम्पशन एज अ होल ऑफ एंटायर ट्रस्ट। इसलिए अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ट्राई टू मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर बिजनेस एंड सेपरेट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी। देन सेक्शन 12(2), value of medical education service provided to specified person by trust running hospital and education institution shall be income of the trust and will be chargeable in the year in which services provided and chargeable to tax despite section 11(1)। अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन जो उन्होंने वहां बताए हैं और ट्रस्ट अगर हॉस्पिटल चला रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा है और आपने उनको वो सर्विस वहां पे दे दी है, जैसे मान लीजिए चेयरमैन का बच्चा आपके कॉलेज में पढ़ रहा है और आपने उसको फीस नहीं लिया, आप स्पेसिफाइड सर्विस अगर आप कहीं पे दे रहे हैं तो आपका सेक्शन 11 के आपको बेनिफिट ना मिलते, पूरी इनकम आपकी चार्जेबल में चली जाएगी। नेक्स्ट, सो व्हाट आर द कंडीशन जिसमें इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 11? ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं? सो देयर आर फ्यू कंडीशंस दैट जो ट्रस्ट आपने बनाया इट हैज टू बी लॉफुल पर्पस, यानी कोई भी काम ऐसा ना हो कि जो अनलॉफुल पर्पस के लिए आप ट्रस्ट बना ले रहे हैं। तो इट हैज टू बी क्रिएटेड फॉर लॉफुल पर्पस एंड शुड नॉट बी क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट। नंबर 2, ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड विद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 12(a)(b)। मैंने 12(a)(b) इसलिए बोला क्योंकि अब 12AA कुछ दिनों का मेहमान है, 1 अक्टूबर से 12(a)(b) स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 3, the property from which income is derived should be held under trust by such charitable trust. The property should be held wholly for charitable purposes. अगर प्रॉपर्टी आप पार्टली चैरिटेबल और पार्टली दूसरे पर्पस के लिए करते हैं तो आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। इट शुड बी होली फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल होना चाहिए। Exemption is confined to only such portion of trust income which is applied to charitable religious purpose and is accumulated for applying such purposes in India। मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जितना प्रपोर्शन आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा किया है, जैसे आपने हॉस्पिटल है या कॉलेज है और आपने ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, तो कॉलेज की इनकम जितनी आपने अप्लाई की है वो आपको 11 to 13 में एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन ग्रोसरी स्टोर का आपको कुछ भी एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। और वन मोर कंडीशन इज 85% ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। आपकी ग्रॉस जो भी इनकम आएगी, जो भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जो आपकी ग्रॉस कॉन्सेप्ट आएगा, उस ग्रॉस इनकम का 85% आपने अप्लाई करना चाहिए। See, there is a concept of income and application of income. There is no concept of income and expenditure under Charitable Trust Act. So application of income includes both revenue expenditure as well as capital expenditure. So for the purpose of balance sheet, you may be classifying some of capital expenditure like building construction or purchase of furniture under balance sheet. But in the scheme of taxation of charitable trust, you have to claim that capital expenditure as application of income against income. So that
total 85% you must spend during the year, so that if it remains 15%, then you need not pay any tax. और आप वन मोर थिंग इज दैट, अगर आपका 15%, मान लीजिए आपका 80% खर्चा हुआ, 15% आपको अलाउड है, पर 5% अगर आपका 2.5 लाख के अंदर आता है, स्टिल यू आर नॉट लाइबल फॉर द टैक्सेशन, बिकॉज चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 2.5 लाख रुपए की बेसिक लिमिट दी गई है. सो हमने ये देखना है कि 85% अगर स्पेंड हो गया है तो बहुत अच्छा है. अगर 85% स्पेंड नहीं हुआ है तो देन कम्स द प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ कि हमको सेक्शन 11(1)(2) के अंदर बेनिफिट लेके जाना है कि सेक्शन 11(2) में लेके जाना है, वो मैं भी आगे इस स्लाइड पे बताऊंगा आपको. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो पार्ट ऑफ इनकम शुड एंश्योर बेनिफिट फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रस्टीज. सो अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं तो हम सेक्शन 11 के अंदर बेनिफिट हमको मिलेगा. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पस? हमने कॉर्पस डोनेशन पढ़ा सेक्शन 11(1)(d) में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन कॉर्पस? तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट लीजिए या लॉ लेक्सिकॉन उठा लीजिए, आपको कहीं भी जुडिशियल गाइडेंस उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा कि कॉर्पस मतलब क्या. पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी अगर आप निकालेंगे तो वहां इसके बारे में एक रेफरेंस आता है कि इट मीन्स एन एग्रीगेट और मास फिजिकल सब्सटेंस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंटेलेक्ट कंसेप्शन. ये छोड़ दीजिए, द प्रिंसिपल सम और कैपिटल एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इनकम. यानी कोई चीज जो कि आपको एक पर्टिकुलर आइटम के लिए स्पेसिफिकली बोल के देगा, ये आइटम मैं इस प्रिंसिपल काम के लिए या इस काम के लिए दे रहा हूं, या इसको मेरा इस तरह कैपिटल समझा जावे, दैट इज नोन एज अ कॉर्पस. The corpus ingredient constitute originally donated or settled amount of capital account in the form of money. क्या होता है कि हम अगर उससे मान लीजिए 1 लाख रुपए दे दिया तो इट कम्स अंडर कॉर्पस, लेकिन उसके ऊपर जो इनकम आएगी दैट इनकम विल नॉट बी अ कॉर्पस इनकम, वो आपके नॉर्मल इनकम में जाएगी अनलेस इट इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय द डोनर इन राइटिंग कि भाई उसकी इनकम भी कॉर्पस ट्रीट की जाए और उसके हिसाब से ऐसा खर्चा किया जाए. ठीक है. So to claim a donation to be corpus donation, it is necessary that a written direction from donor is obtained. It is very very essential. Nowadays अगर आप exemption section में जो लोग जा रहे होंगे अपने स्क्रूटिनी के लिए, you will find कि corpus donation जब भी आपके ट्रस्ट के कैपिटल अकाउंट में कहीं जमा दिखाई देता है, ट्रस्ट फंड में या किसी अलग फंड में, तो असेसिंग ऑफिसर क्वेश्चनर में आपको पूछता है कि what proof you are having that this amount should be treated as corpus. Next. प्रवीण जी, नेक्स्ट स्लाइड. कॉर्पस डोनेशन तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट. व्हाट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशंस अ ट्रस्ट रिसीव? तो ट्रस्ट को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किस तरह से मिलता है? एक कॉर्पस डोनेशन. तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, then they do not form part of the total income of the trust as per section 11(1)(d). Then now corpus contributions other than corpus donation. So whatever contributions you are receiving or your trust has received apart from corpus, all will be considered under the head of income in computation of income, and deductions or exemptions will be worked out accordingly if you are eligible under section 12AA. So while corpus donation do not form part of total income, the other voluntary contributions are exempt as per requirement of section 11 to 13. I think this made clear difference between corpus and non-corpus donation. So there are certain things, उसको हमने कैसे ट्रीट करना, वेदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के अंदर आएगा क्या, आएगा तो इनकम का पार्ट बनेगा क्या. तो देयर आर वेरियस छोटे छोटे मैंने जजमेंट निकाले हैं कि मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एज दे आर नॉट द ग्रेचुअस पेमेंट बाय द मेंबर फॉर एनी सोशल पर्पस और अ पेमेंट विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन. जो कई बार मेंबरशिप फीस आ रही खाली आपकी सब्सक्रिप्शन आ रही है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. ये आपका बॉम्बे हाई कोर्ट हमारा ही कहता है. ऐसा ही where a trust received voluntary contribution with specific direction that it should form part of corpus trust, the trust will not do exemption if the contribution is applied for meeting running expenses. Very interesting case. जरूर इसको पढ़िए, 11/90/40 दिल्ली केस. टेक एग्जांपल कि आपको किसी आदमी ने एक ट्रस्ट को 5 लाख रुपए डोनेशन दिया कि ये पैसा आप आपके स्कूल में क्लासरूम में
कंस्ट्रक्ट करेंगे इससे, या इससे आप एक लाइब्रेरी बनाएंगे, ठीक है। सो ideally that money has to be utilized for the purpose of building a building or library building. अगर आप उसके अगेंस्ट कोई और खर्चा करते हैं तो आपका एग्जम्पशन डिनाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रस्ट को पैसे का प्रॉब्लम है और ट्रस्ट का डेली रनिंग एक्सपेंडिचर मीट नहीं हो रहा है, देन अगर आप कॉर्पस डोनेशन को इसमें अगर आप यूज कर लेते हैं रेगुलर रनिंग एक्सपेंसेस में, तो आपको एग्जम्पशन आपका विड्रॉ नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो कई बार जब हम कंप्यूटेशन बनाते हैं हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि हमने फंड जो कॉर्पस अगर किसी ने 5 लाख का दिया और वो खर्चा नहीं हुआ तो 5 लाख आपकी एफडी में या सेविंग अकाउंट में दिखना चाहिए ट्रस्ट के, पर ईयर एंड में मालूम पड़ा 4 लाख ही दिख रहा है, लाख रुपए आपने खर्चा कर लिया। इफ दैट एक 1 लाख रुपीज इज स्पेंट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सीजेंसीज, देन इट इज अलाउएबल, अदरवाइज आपका एग्जाम्पशन टू दैट एक्सटेंट विड्रॉ हो जाएगा। Where a charitable trust received donation from different donors who had specifically directed that donations were to remain as corpus of trust, the trust will not be precluded from using those receipts for making donation to other charitable trusts. Section 12 does not recognize such receipts as income of the trust. एक दूसरा बंधन है, अगर आप लोग चैरिटेबल ट्रस्ट का जब स्क्रूटिनी देखेंगे तो क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपने दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया है क्या। अगर एक ट्रस्ट जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है दूसरे सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनेशन देता है, तो दैट इज नॉट अलाउएबल एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप कॉर्पस डोनेशन आया हुआ डोनेशन अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट को दे देते हैं तो फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम नहीं होगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है, दिल्ली ट्रिब्यूनल का डिसीजन है। नेक्स्ट, अभी तक हम इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, क्या पार्ट ऑफ इनकम होता है हम उसकी बात कर रहे थे। नाउ वी आर कमिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन द केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम? The exemption under section 11 is available only if the income derived from property held under its trust is applied to charitable trust. मैंने आपको शुरू में बोला कि application of income is the concept. There is no concept of expenditure. तो जो भी आपको इनकम आई है उसमें से जितना आपने उसके अंदर अप्लाई कर दिया है that will be treated as application. और income must be available for application. आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि TDS cannot be considered as income. See this 1985 tax Calcutta decision. So only income will be available for application. क्योंकि TDS आपके अकाउंट में आया नहीं है इसलिए आप उसका कोई एप्लीकेशन कर नहीं सकते, इसलिए वो पार्ट ऑफ इनकम होगा नहीं। The application of income need not necessarily result in expenditure. Therefore, an amount irrevocably earmarked or allocated for the purpose of trust is also treated as applied, even though it has not been actually spent. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। हमको क्या मिल रहा है, आपको जो इनकम आई है यू हैव टू अप्लाई दैट इनकम। पर समझिए कि आपके पास एक 10 लाख रुपए का डोनेशन आया और आपको 10 लाख रुपया खर्चा करना है, पर आप खर्चा नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि खर्चा करने में थोड़ा समय है, तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि सेक्शन 11(1)(a) या 11(1)(2) और 11(2) में चले जाएं। अदरवाइज ये भी ऑप्शन है कि आप उसको ईयर मार्क एलोकेट कर दीजिए कि ये 10 लाख रुपए हमने इसको निकाल के अलग कर दिया, इसकी एफडीआर अलग कर दी है और ये पैसा इसमें ही खर्चा होगा, ये से किसी और चीज में खर्चा नहीं होगा। तो वो जो आप उसको ईयर मार्क एलोकेट करेंगे, जो उसको अप्लाई करेंगे, उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम में गिना जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, प्लीज रीड this entire presentation will be mailed to you all the participants. Kindly read this particular 131 ITR 497 Andhra Pradesh decision. Then application need not necessarily result in revenue expenditure. Even capital expenditure is considered to be application of income for the purpose of section 11 if incurred for charitable purpose. मैं थोड़ी देर पहले भी जो बोल रहा था कि concept of application includes capital and revenue expenditure both. Next slide. So we have seen the income, we have seen the application of income. Now हमारा केस कैसा बनता है कि हमने इनकम आई but we could not spend 85%. So हमें टैक्स भी नहीं भरना है. So what is the resorts? Now resorts are accumulation.
So what are the conditions of accumulation? Under what sections you can accumulate? Number 1, 11.2, accumulation of unapplied income. Whatever income you have received, if you have not spent 85%, तो by the shortage, suppose 85 के बदले आपने 70% स्पेंड किया, या समझिए 65% स्पेंड किया, तो 20% you are eligible for accumulation under section 11.2 for 5 years. आपको उसके लिए एक रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा और वो पैसा आप अगले 5 साल में कभी भी खर्चा कर सकते हैं. सो इफ यू एक्यूमुलेट, तो आपका जो उसके रिटर्न के साथ में फॉर्म नंबर 10 आपको साथ में फाइल करना पड़ेगा टू इन्फॉर्म असेसिंग ऑफिसर कि यू हैव एक्यूमुलेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आपको उसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पैसा आप किस चीज के लिए यूज करना चाहते हैं, और फिर उस पैसे को सेक्शन 11.5 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है. अगर आप सेक्शन 11.5 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ accumulation, and this fact you need to report under 10 form 10B in audit report. Kindly note this thing very clearly in your mind कि अगर उन्होंने किसी ट्रस्ट ने कोई एप्लीकेशन के लिए अगर एक्यूमुलेशन किया है तो देयर हैज टू बी अ रेजोल्यूशन ऑफ द ट्रस्ट उनके बॉडी के अंदर. उसके बाद में उन्होंने फॉर्म नंबर 10 फाइल करना चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. दैट एक्यूमुलेशन कैन बी मैक्सिमम फॉर 5 years and that should be invested under section 11.5. लेकिन कोई कारण से ट्रस्ट में किसी तरह का स्टे हो गया या किसी कोर्ट ने कोई रोक लगा दी है तो आपका ये 5 साल के कैलकुलेशन में उतना स्टे का पीरियड ऐड हो जाएगा. लेकिन आप कोई भी एक्यूमुलेशन ऐसा नहीं कर सकते जो कि सेक्शन 12AA या 1023 यानी जो चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है या कोई ऐसा ट्रस्ट जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है 1023, उनके बेनिफिट के लिए आप कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं कर सकते. करने के लिए आप खुले हैं, लेकिन यू वोंट बी गेटिंग एनी बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11.2. Am I clear? Next. So section 11.2 not to restrict operation of section 11.1. that अगर आप इसको इस केस लॉ को सुप्रीम कोर्ट का जरूर पढ़िए. और अर्लियर अगर कोई बिलेटेड एप्लीकेशन एक्यूमुलेशन होता था, अभी भी एक सर्कुलर आया हुआ, पहले भी एक सर्कुलर था, तो पहले क्या था कि आपका सर्कुलर नंबर 273 क्या बोलता था कि अगर आप फॉर्म नंबर 10 फाइल नहीं कर पाए, स्टिल आप बिफोर असेसमेंट या बिफोर अपील भी अगर आप देते हैं तो इट इज अलाउएबल. नाउ स्कीम ऑफ टैक्सेशन हैज चेंज. अब उनका कहना है कि जो भी आप एक्यूमुलेशन करते हैं उसका फॉर्म 10 इट हैज टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली कंपल्सरीली बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. पिछले कुछ सालों में असेसमेंट ईयर 14, 15, 16, 17, 18, 19 में अगर आप कोई कारण से डिले से आपने फाइल किया है फॉर्म 10 और 10B, तो आप डायरेक्टर एग्जेम्पशन को अप्लाई कीजिए और वो आपको उसका कंडोनेशन ऑफ डिले देंगे. इनवेरिएबली वो सभी केस में दे रहे हैं, आपको जिस दिन फाइल करते से 3-4 दिन के अंदर हो जाएगा. नेक्स्ट. अब आपने एक्यूमुलेशन किया लेकिन आप उस एक्यूमुलेशन को यूज नहीं कर पाए. सपोज आपने एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 50 लाख रुपीज का एक्यूमुलेशन किया फॉर 5 years, बट यू कुड नॉट यूज दैट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. नाउ सेक्शन 11.3A comes into picture. Applied for purpose other than charity or cease to be accumulated or set apart for charity, taxed in such year of application. और cease to be invested in 11.5 taxed in the year of cessation. जिस साल में आपको इन्वेस्टमेंट करना था और आप नहीं कर पाए, तो जिस साल में नहीं कर पाए उस साल में आपका टैक्स हो जाएगा. 11.3C is not utilized for the purpose for it was accumulated by the expiry of year immediately following the period of accumulation, taxed in immediately following expiry of the period aforesaid. आपने 5 साल के लिए accumulation किया 50 लाख रुपए और 5 साल में आप नहीं कर पाए, तो 5 साल जैसे ही खत्म होंगे 6th year में this entire 50 lakhs will be taxed as your income of that particular year. And 11.3D is credited or paid to exempt trust taxed in the year of credit. आपने मान लीजिए accumulation किया और आपने किसी exempt trust को पैसा दे दिया, तो आपका जिस साल पैसा देंगे उस साल में टैक्स हो जाएगा. So meaning thereby any accumulation which you have made for 5 years, 4 years, or maximum period is 5 years. So 5 years accumulation
that money you have to use for 5 years. If you are not using, then it will be taxed in the 6th year. Now there is a catch now, as a part of strategy to save the tax. 5वें साल में आप यूज नहीं कर पाए और 6वें साल में आपका पैसा टैक्स में लग गया, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसको इनकम में लेके जाना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में. अब वो इनकम में 50 लाख रुपए जुड़ गए. फिर जब आप नीचे आते हैं, देन यू कैन अगेन पास अ रिजोल्यूशन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर फर्दर 5 years. तो अगर आप फिर से रिजोल्यूशन पास कर देते हैं तो यू आर अगेन एंटाइटल फॉर द एक्यूमुलेशन. लेकिन आपको उसके रिजोल्यूशन लेने हैं और रिजोल्यूशन के अंदर आपको उसको जोड़ना नहीं है कि वो पहला एक्यूमुलेशन नहीं कर पाए इसलिए हम ये कर रहे हैं. अगर आप ये लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल एक्यूमुलेशन फिर से करते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा. नाउ अगर आपने समझिए, इफ यू हैव मेड एक्यूमुलेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नाउ यू वांट टू चेंज द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेशन. You are not able to construct a building or municipal authorities are not giving permission. Now you want to go for purchasing of the books for the library. So there 11.3a is the section. In case of 11.2, if the income cannot be applied for the purpose for it was allowed to be accumulated, then an application can be made to change the purpose of application. Concerned assessing officer को you made an application on a plain paper. If we have accumulated for such and such thing for such and such period, but due to these technical difficulties, जो आपकी डिफिकल्टी जेन्युइन होना चाहिए, एक्सप्लेन करना है आपको, वी वांट टू चेंज, तो चेंज दे विल अलाउ. लेकिन इसका प्रोवाइजो फर्स्ट क्या है, द चेंज पर्पस कैन नॉट बी पेमेंट टू एग्जाम ट्रस्ट. आप ये नहीं बोल सकते भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, सो नाउ हम किसी दूसरे ट्रस्ट को जो सेक्शन 1023 में एग्जाम्प्ट है उसको ये पैसा देना चाहते हैं. नो, दिस इज नॉट अलाउड. और accumulated fund of dissolved trust can be credited or paid to exempt trust in the year the trust was dissolved. हाँ, लेकिन अगर आपका ट्रस्ट डिसॉल्व हो रहा है इस साल, मान लीजिए आप एक्यूमुलेट यूज नहीं कर पाए और आपका ट्रस्ट डिसॉल्व हो गया, तो ये पैसा दूसरे एग्जाम ट्रस्ट को आप दे सकते हैं. सो 3 things इज देयर. यू कैन चेंज द बेसिक पर्पस ऑफ द ट्रस्ट एक्यूमुलेशन. उसके बाद आप उसको चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि एग्जेम्प्टेड है उनको नहीं दे सकते, लेकिन रिजोल्यूशन के केस में आप दे सकते हैं. नाउ हम हमेशा नॉर्मली आप 90%, 98%, 99% ट्रस्ट में तो आप पाएंगे कि नॉर्मल इनकम, डोनेशन, रेंट और ये सब आप पाएंगे. वेरी रेयरली यू सी द कैपिटल गेन. सो व्हाट इज कैपिटल गेन, हाउ इट हैज टू बी डील व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, और ट्रस्ट के केस में किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं. नाउ लेट अस डिस्कस दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सो ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन्स. नाउ सेक्शन 11.1 कैपिटल ए फर्स्ट केटर टू 2 मेन सिचुएशन. वो 2 सिचुएशन बताता है कि वेयर द कैपिटल असेट इज प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, और वेयर द ट्रस्ट इज हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट इन पार्ट फॉर सर पर्पस. यानी मैं थोड़ी देर पहले इस बात को डिस्कस कर रहा था कि एक प्रॉपर्टी आधी चैरिटेबल और आधी रिलीजियस पर्पस के लिए रखा है या पार्ट में, जैसा भी रखा है. तो इसके अंदर क्या, जब आपने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेची तो वेयर द होल ऑफ नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज इन एक्वायरिंग द न्यू कैपिटल असेट. आपने अगर 1 करोड़ में बेची और 1 करोड़ में नई कैपिटल असेट खरीद ली, एक सिचुएशन वो हो सकती है. दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपने बेची और आपने कुछ पार्ट यूटिलाइज किया. आपने 1 करोड़ में बेची और 75 लाख में नई प्रॉपर्टी खरीद ली. सो ये 2 अलग अलग सिचुएशन वहां पे हो गई. लेकिन एक बात फिर भी आपको फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बोलता हूं, there won't be any head under computation of income called capital gain. ये तो फॉर द पर्पस कैपिटल गेन को कैसे इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम में दिखाना है, ये मैं आपको उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्योंकि मैनी टाइम मेरे पास कई तरह की क्वेरी आती है कि साहब हमने ट्रस्ट की लैंड बेच दी है, अब इसका आ गया है तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसा भरना. और कुछ केसेस में लोगों ने 20% लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भर दिया विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट कि ये कैपिटल गेन करके कोई कॉन्सेप्ट अलग से कोई हेड ऑफ इनकम है ही नहीं ट्रस्ट में. सो ये 2 जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हम क्वांटम ऑफ इनकम कैसे होगी और कैसे उसका एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा और कैसे हम कोई भी कैपिटल गेन को पूरा का पूरा टैक्स से बचा सकते हैं, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ. प्रवीण जी नेक्स्ट स्लाइड. सो ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन. Income as defined under section 224 includes capital gain. So for purpose of 11(1)(a), capital gain are also considered as part of income. Mind well the word income.
since capital gain are also considered as part of income, therefore they can be applied for charitable or religious purposes. वेरी इंपॉर्टेंटली, आपका जो कैपिटल गेन आया आप उसको इनकम में जोड़ दीजिए. उसका एप्लीकेशन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा आगे के, लेकिन उसको पार्ट ऑफ इनकम में लेना है. यू शुड नॉट शो इट सेपरेटली. कोई इंडेक्सेशन किसी तरह का आपको कुछ देना नहीं है, कोई तरह के बेनिफिट उसके अंदर लेने नहीं है, कोई तरह के आपको वैल्यूएशन पे उस पर जाना नहीं है. फिर अंडर सेक्शन 11(1) कैपिटल. सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. एंड सीरीज वेस्टेड इन एनआर विल डीप टू हैव बी. आवाज ब्रेक हो रही है अभी क्लियर आ रही है? हाँ यस सर, अब नाउ इट इज ओके. हाँ, वो बीच बीच में वो चैरिटेबल आ जाता ना. सो अगर आपने कोई कैपिटल असेट बेची 1 करोड़ में और आपने नई कैपिटल असेट खरीद ली, तो आप अब लॉजिकल एंड से जाता हूं मैं आपको लेके कि आपने जो बेची वो आपने इनकम में ले ली, और एनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम इफ इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको वैसी छूट मिलती है. तो अगर आपने जितने की बेची और उतने का अगर आपने नया कैपिटल असेट खरीद लिया है तो आपका पूरा का पूरा इनकम एग्जेम्प्ट हो गया. बराबर है. एंड इफ अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो डिफरेंस जो है वो आपका इनकम करके ट्रीट होगा. वो कैसे ट्रीट होगा, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, बताता हूं आपको उसमें. प्रवीण जी नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, पहले उसके पहले भी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैपिटल नहीं, वही पे, हाँ, ट्रीटमेंट के बाद आइए. The capital gain have to be reinvested in other capital asset in the same year unless the exercise the option available under section 11(1). Like बाकी capital gain के जो सेक्शन है 48 to 54, वहाँ 55, वहां पे और यहाँ पे बेसिक फर्क है. यहाँ पे कैपिटल गेन अगर आपका इस साल हुआ है तो आपको इसी साल इन्वेस्ट करना है. अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है और आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी, इस साल ही खरीदनी है, पर सपोज की जब प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए तो कैपिटल गेन कैसे बचेगा? क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम है. तो एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड का ये नोट करके रख लीजिए, आपको हर समय काम आएगा. सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन है 24/9/1975 को, इंस्ट्रक्शन नंबर 883. अगर आपके पास इस तरह कोई पैसा आया, यू मेक अ एफडी फॉर 6 मंथ. अगर आप 6 महीने की एफडी बना देते हैं तो दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. इट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल गेन. So your trust won't be liable for any tax on that particular property sold. इसमें बहुत सारे हाई कोर्ट ने बोला है कि 6 महीना भी आप नहीं बोलना चाहिए. देखिए मैंने लिखा भी है, वेरियस हाई कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट सच 6 month टाइम लिमिट इज लीगली नॉट वैलिड. अगर आप 2 दिन के लिए भी एफडी रख के विड्रॉ कर लेते हैं तो भी आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन मिलेगा. लेकिन फिर भी हमको अगर लिटिगेशन में नहीं जाना है और ऐसा कोई ट्रस्ट है जिसको कि मान लीजिए बेचने के बाद प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, तो उसने क्या करना, उसने एक एफडी बना देना 6 महीने की मिनिमम, सो दैट इट विल बी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन. काइंडली नोट दिस इंस्ट्रक्शन नंबर 883, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11(1)(a) फॉर रिटेंशन ऑफ न्यू एसेट. अब मजेदार किस्सा है, आपने इस साल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, नहीं खरीद ली, तो अनलाइक बाकी सेक्शन 54 और 54F वगैरह के अंदर आपको प्रॉपर्टी 3 साल तक होल्ड करनी है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी, आप फिर 2 दिन बाद बेच दीजिए, 2 महीने बाद बेच दीजिए, 2 साल बाद बेच दीजिए, आप कभी बेचिए. क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एग्जाम्पशन के क्राइटेरिया नहीं है. यहाँ पे इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम का ही खाली क्राइटेरिया है. काइंडली माइंड दैट. सो देयरफॉर if the asset is held at the end of relevant previous year and disposed of in the subsequent year, then the exemption cannot be denied nor they can withdraw in the next year. अगर आपने इस साल मार्च के पहले असेट खरीद ली, समझिएगा आपने प्लॉट खरीद लिया और अप्रैल में बेच दिया, तो आपका कोई भी एग्जेम्पशन डिनाई नहीं होगा. सो ये जो कंफ्यूजन है कैपिटल गेन का, ये मैक्सिमम ट्रस्ट के अंदर हम प्रैक्टिशनर से मैक्सिमम जगह गलती होती है. और ये बहुत जगह मैंने गलतियां देखी हैं, नॉट ओनली इस पार्ट में, बल्कि मैंने महाराष्ट्र में, पूना में, बंबई के बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं. ये प्रॉब्लम इनवेरिएबल लोग आता है, लोग उसमें 20% टैक्स भरवा के उसको रफा दफा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें टैक्स लगेगा ही नहीं इफ यू फॉलो ऑल दिस नॉर्म केयरफुली. नेक्स्ट टाइप. अब मैं एक टेबल दिखाता हूं आपको कि ट्रीटमेंट होता कैसा है दोनों केस में.
समझिए आपकी कॉस्ट ऑफ असेट थी 40,000, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग कॉस्ट। मैंने आपको तभी बताया था इंडेक्सिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तरह कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल प्रोसीड आपका ही 1 लाख रुपया, और री इन्वेस्टमेंट के दो केस से बताता हूँ, पहला 80,000 और दूसरा 1 लाख रुपया। देयर आर टू सिचुएशन कि मैंने 1 लाख की प्रॉपर्टी बेची, 40,000 मेरा कॉस्ट ऑफ असेट था, तो मैंने एक बार 80,000 इन्वेस्ट किया और एक बार मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया। सिचुएशन नंबर 1, देखिए तीनों में कैपिटल गेन दोनों केस में 60,000 रुपया आया। शॉर्टफॉल इन्वेस्टमेंट कितना आया कि मैंने पहले केस में 60,000 इन्वेस्ट 80,000 इन्वेस्ट किया 1 लाख के अंदर से, तो 20,000 मेरा शॉर्टफॉल इन्वेस्टमेंट हुआ। 1 लाख माइनस 80,000, और अगर 1 लाख में से 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मेरा शॉर्टफॉल क्या हुआ, 0 हो गया। तो कैपिटल गेन मेरा कितना आएगा, जो कैपिटल गेन मेरा अप्लाई हो गया, यानी 60,000 की कैपिटल गेन में मेरा 20,000 का शॉर्टफॉल था पहले केस में, तो 40,000 मेरा डीम टू हैव बीन अप्लाइड हो जाएगा, और दूसरे केस में डीम टू हैव बीन अप्लाइड 60,000 हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट। जो नेट कंसीडरेशन से घटने के बाद, कॉस्ट घटने के बाद मेरे पास 60,000 का कैपिटल गेन हुआ, तो जो मेरा शॉर्टफॉल इन्वेस्टमेंट है वो उसमें से माइनस में करने के बाद जो पैसा बचेगा, दैट इज रियल एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल गेन। नेक्स्ट, I think capital gain is now clear for everybody. Now business income of the trust. Section 11(4) provides that a business undertaking held by किसी का चालू है speaker, so I am getting that is irritating. Yes, thank you. Section 11(4) provides that a business undertaking held by a trust will be treated as a property held under a trust. अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉपर्टी हेड अंडर ट्रस्ट ही ट्रीट किया जाएगा। और वेयर अ क्लेम इज मेड दैट द इनकम ऑफ एनी बिजनेस शैल नॉट बी इन द टोटल इनकम, द एओ हैव द पावर टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ सच अंडरटेकिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ। अब आप एक धंधा कर रहे हैं उसके अंदर, और वो धंधा एओ के हिसाब से आपका बिजनेस है, तो वो सेक्शन 28 से 44 के हिसाब से 28 to 44 के हिसाब से आपकी इनकम, बिजनेस इनकम करके असेस करेगा, और ही विल टैक्स अकॉर्डिंगली। और वेयर एनी इनकम, जो भी इनकम डिसाइड हो, जो आपकी आएगी इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम, जो भी आएगी, इट विल बी टैक्स्ड। सो बिजनेस इनकम अगर आपके ट्रस्ट में है तो आपको पहले देखना है कि वेदर इट इज ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है क्या। अगर नहीं है तो उसको आपको सेपरेट उसके बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, ऑडिट करना है, सेपरेट उसका टैक्स भरना है। और क्योंकि सेक्शन 28 से 44 के बीच में है, और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर है, तो यू आर लायबल फॉर टैक्स ऑडिट ऑल्सो। क्योंकि नॉर्मल ट्रस्ट में आपको टैक्स ऑडिट नहीं लगता, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स ऑडिट लगेगा। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 11(4), इनकम अर्न बाय ट्रस्ट फ्रॉम एनी बिजनेस एक्टिविटी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। आपको पता है इंसिडेंटल टू अटेनमेंट होना चाहिए और सेपरेट बुक्स होना चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, मैं आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रीड दिस थांती ट्रस्ट जजमेंट थॉरोली। 247 ITR 785 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, वो ये है कि that a business whose income is utilized by the trust for the purpose of achieving the objectives of the trust is surely a business which is incidental to the attainment of objectives of the trust. In any event, if there is an ambiguity, the provision must be construed in a manner that benefits the assessee. आप सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे चले गए, उनका कहना है कि आपने एक बिजनेस चलाया, वो भले ही आपके ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं था, लेकिन उस बिजनेस का प्रॉफिट अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी में यूज करते हैं तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट अंडर सेक्शन 11 to 13। और सुप्रीम कोर्ट उसके भी एक कदम आगे जाके बोलते हैं कि अगर कोई भी प्रोविजन चैरिटेबल ट्रस्ट का ऐसा लगता है कि आपको इसका बेनिफिट नहीं देना चाहिए, अगर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, तो एम्बिग्यूटी का बेनिफिट हमेशा आपको चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहिए, सो दैट वो अच्छी एक्टिविटी कर पाए। आप उसके पीछे करके आप उसको कोई भी एग्जम्पशन से आपने डिनाई नहीं करना चाहिए। तो शांति ट्रस्ट में ये बेनिफिट है कि अगर आपका कोई ट्रस्ट बिजनेस कर रहा है तो करे, लेकिन उसका सारे के सारे सरप्लस को दैट ट्रस्ट शुड अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ charitable objects. Now, rental income of the trust. Rent derived from addition to trust building is exempt from tax when rent was used for religious purposes. मंदिर है, मंदिर के बाजू में सभागार बना दिया है और सभागार भाड़े पे देते हैं, तो जो भाड़े की जो इनकम आएगी वो अगर मंदिर के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो इट विल बी
allowed as an expenditure. The word applied is wider in import than word of expenditure. The construction of building was for the purpose of getting some income by way of rent, and such income would be applied for charitable purpose. The purpose of was sufficient for satisfying 11(1). वो जो मैंने आपको बताया, बिल्डिंग ने, मंदिर ने आपके कमरे बना ली, लोगों किराए पे दे रहे हैं, जैसे बालाजी मंदिर में, काफी मंदिरों में है, जैसे आपका बॉम्बे में भी 2-3 ब्रिटिश इस्कॉन वगैरह में भी है, तो वो किराए पे दे देते हैं। वो जो किराए का पैसा है, अगर आपने वो मंदिर में खर्चा किया तो यू आर एंटाइटल फॉर ऑल द बेनिफिट। नेक्स्ट, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है कि इट हैज बीन हेल्ड दैट लेटिंग ऑफ धर्मशाला, कोई ट्रस्ट धर्मशाला बना रहा है, ऑडिटोरियम, रनिंग ऑफ लाइब्रेरी could not be considered a business activity and any income generated from activity should be considered income from property held under trust। क्या होता है, जैसे कोई ट्रस्ट का काम है, बहुत सारे जगह जगह उन्होंने धर्मशाला बना के, जैसे अपने यहाँ हमारे कंट्री में बिरला जी के ट्रस्ट हैं, उन्होंने हर शहर के अंदर बड़े बड़े रिलीजियस प्लेसेस के अंदर धर्मशालाएं बनाई हैं, ऑडिटोरियम बनाए हैं, लाइब्रेरी बनाई है। तो वहां के जो पैसा आता है, हम लोग जाके जो रुक के जो पैसा देते हैं, तो ये सीआईटी का मानना था कि इट्स अ बिजनेस इनकम, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, बिजनेस इनकम नहीं है, ये अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट के लिए, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और इसको डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, इसलिए दिस इज द फाइनल लॉ। तो लेटिंग ऑफ धर्मशाला अगर कुछ है तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। डीम्ड यूज ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन 13(2), कौन कौन सी चीजें हैं जो सेक्शन 13 के लोगों को बेनिफिट देती हैं, और बेनिफिट के चलते आपको आपका बेनिफिट जो सेक्शन 11 to 13 के जो बेनिफिट आपके विड्रॉ हो जाते हैं। वन इज लोन टू इंटरेस्टेड पार्टी, ट्रस्ट का पैसा आपने ट्रस्टीज को लोन दे दिया, यू आर नॉट अलाउड टू गेट 11 to 13 बेनिफिट। यूज ऑफ मूवेबल इमूवेबल ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की कार है, ट्रस्टी क्या नाम है, खुद के पर्सनल काम के लिए घुमा रहे हैं, रिकॉर्ड पे अगर लॉग बुक है तो आप उसको देख सकते हैं, लॉग बुक नहीं है तो फिर हमको ये मान के चलना पड़ता है ऑडिट में कि भाई ट्रस्ट में यूज हुई होगी, लेकिन अगर लॉग बुक है तो आपने इस बात को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एंड देन पेमेंट ऑफ एक्सेस सैलरी और रेम्यूनरेशन, कोई भी ट्रस्टी जो ट्रस्ट के लिए काम कर रहा है, दे कैन बी पेड अ वेरी रीजनेबल अमाउंट ऑफ सैलरी और रेम्यूनरेशन, पर आप अनरीजनेबल कोई चीज दे रहे हैं तो वो आपको आपके सारे के सारे बेनिफिट चले जाएंगे। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, ट्रस्टी का बेटा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, बाकी बच्चों की फीस 10,000 है, ट्रस्टी के बच्चे से आप 2,000 रुपए ले रहे हैं, तो योर एंटायर बेनिफिट अंडर सेक्शन 11 to 13 विल गो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एक्सेसिव प्राइस, ट्रस्ट ने कुछ एक लैंड खरीदी है या ट्रस्टी से कुछ जो खरीदी ट्रस्टी के नाम पे है, मार्केट से ज्यादा प्राइस से खरीद ली, तो आपके पूरे के पूरे बेनिफिट चले जाएंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सेम जैसा परचेज में वैसा सेल में, ट्रस्टी को सस्ते भाव में ट्रस्ट की प्रॉपर्टी दे दी, ट्रस्ट की कार दे दी, ट्रस्टी को कोई और चीजें दे दी, तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। डाइवर्सन ऑफ ट्रस्ट इनकम इन एक्सेस ऑफ 1,000 रुपीज, वेरी स्मॉल लिमिट, 1,000 रुपए से ऊपर आपने ट्रस्ट की कोई भी इनकम किसी भी पर्टिकुलर ट्रस्टी के और उसके फैमिली के लिए डाइवर्ट किया है तो आपके पूरे के पूरे बेनिफिट चले जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट इन कंसर्न इन विच इंटरेस्टेड पार्टी है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, आपने ऐसी कंसर्न में पैसा लगा दिया जहां पे आपके ट्रस्टी इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो भी आपका सारा का सारा एप्लीकेशन 11 to 13 का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूड कौन कौन होती है इंटरेस्टेड पार्टीज? तो ऑथर और ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, फाउंडर और मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पर्सन हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन 50,000, आपका भले ही ज्यादा कुछ नहीं है से, लेकिन आपने 50,000 रुपए से ऊपर अगर ट्रस्ट को दिया है तो आप इंटरेस्टेड पार्टी हो गई। रिलेटिव ऑफ अफोरसेड पर्सन, ऊपर जितने भी लोग हैं उनके कोई भी रिलेटिव जो कि लीनियरली असेंडेंट और डिसेंडेंट है ब्लड में, और कंसर्न इन विच अफोरसेड पर्सन है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये ऊपर के जो लोग हैं, मान लीजिए मैंने 50,000 आपके ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया, तो मैं जिस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं वहां पे भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो मैनेजर ऑफ अ ट्रस्ट विजा विज मैनेजर ऑफ एन इंस्टीट्यूट दोनों सेम होते हैं, यानी आप बोलेंगे मेरा एक ट्रस्ट है
और उस ट्रस्ट के अंदर 13 अलग अलग इंस्टीट्यूट चलती है, तो 13 इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर रहेंगे वो भी पार्ट ऑफ दिस मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट हो जाते हैं। तो उनके भी कोई बेनिफिट, जो कि अगर उनका नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है तो एक अलग इशू है, अदरवाइज कोई भी बेनिफिट आप उनको दे नहीं सकते। सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ट्रस्ट। लाइफ टाइम ऑफ ट्रस्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर आपका कई ट्रस्ट मिलेंगे जिसमें साल भर में 2, 5, 10 साल के अंदर उसके अंदर 2, 5, 10 लाख के ऊपर आज तक उसके अंदर डोनेशन ही नहीं आया, और मैं आता हूँ और उसके अंदर साइजेबल 4 लाख का डोनेशन दे देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, exemption under the head religious trust has always been available only in respect of religious trust which ensure for the benefit of public। यानी कोई भी मंदिर का आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो मंदिर आपने आम आदमी के लिए खोल के रखा है। जैसे नागपुर का टेकड़ी गणेश मंदिर, अगर वो बोल दें कि नहीं हमारे जो ट्रस्टी के अलावा कोई और दर्शन करने को नहीं आ सकता, so you will lose all the exemption under section 11 to 13। और where the trust is for private religious purpose, the exclusion did not and does not apply to the part of income of property held under trust which does not ensure benefit of public। आप बोलते हैं मेरा खुद का प्राइवेट रिलीजियस प्रॉपर्टी है, उसके अलावा भी उस ट्रस्ट के अंदर दूसरी चीजें हैं, तो जो खुद की प्राइवेट रिलीजियस प्रॉपर्टी है जिसका की बेनिफिट आपने आम आदमी को नहीं दिया है, वो उसमें से बाहर हो जाएगा और बाकी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट के लिए अगर आपने ट्रस्ट बना दिया है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन केस के बारे में चर्चा करूंगा। अहमदाबाद राणा कास्ट एसोसिएशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई एक सेक्शन ऑफ पब्लिक, अगर वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपने उनके वेलफेयर के लिए अगर कोई आपने ट्रस्ट बनाया है तो इट विल बी अ चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस कम्युनिटी अलाउड नहीं है, लेकिन कोई कम्युनिटी भले ही साइज में छोटी हो, अहमदाबाद राणा कास्ट इज वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और उनको अलाउ किया। और ऐसा ही माहेश्वरी अग्रवाल मारवाड़ी महेश्वरी पंचायत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा शानदार डिसीजन है कि इट वाज हेल्ड दैट सिंस द ट्रस्ट वाज फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, the provision of section 13(1)(b) were not applicable as they apply only to charitable trust. As per the intimation, 13(1)(b) will not apply in case of religious or both religious or charitable trust. तो रिलीजियस कम्युनिटी अगर कोई भी है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है, तो वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर खाली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अहमदाबाद राणा कास्ट एसोसिएशन बिल्कुल ध्यान में रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके चलते बहुत बार वो और दूसरा आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो केस है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, ये दो के बेसिस पे कई बार सेक्शन 12A के जो रिजेक्शन हुए हैं उसके अंदर ट्रिब्यूनल ने वापस उनको रिस्टोर किया है। सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है भारत डायमंड के केस में कि वेयर अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल और इज यूज अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ सेटलर फाउंडर और अदर स्पेसिफाइड पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। ये वहां पे आने के बाद से डिपार्टमेंट ने सब तरफ से उसको डिसअलाउ करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट, सेक्शन 13(1)(d), द इनकम ऑफ एनी चैरिटेबल ट्रस्ट विल नॉट बी एंटाइटल्ड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11(12) इफ द जो फंड है 11(5) में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किए तो आपको नहीं मिलेगा कोई भी तरह एग्जम्पशन। और जो आप, जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको करना है, लेकिन 15% का जो पैसा आपका जो बच रहा है वो आपको 11(5) के हिसाब से रखना, 15% के जो बियॉन्ड है वो आप दूसरी जगह रख सकते हैं। लेकिन जो 11(2) का जितना भी एक्यूमुलेशन है दैट हैज टू बी फॉर एज पर सेक्शन 11(5). तो बेसिक अगर हम उसको ब्रॉड लिस्ट में देखें तो एक ही चीज है कि आपने अगर 11(5) में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किए तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट अंडर सेक्शन 11 to 13। नेक्स्ट इज एनोनिमस डोनेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत सारे ट्रस्ट में आप देखेंगे लोग पैसा लाके देते हैं लेकिन डोनर का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते, सो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस डोनेशन। और इसके लिए सेक्शन 115 BBC इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जो भी एनोनिमस डोनेशन किसी ट्रस्ट में आते हैं उसको फ्लैट 30% मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स किया जाता है। तो ये जो सेक्शन 11 में जितने
आ रहे हैं उन सब के लिए सेक्शन है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 1023, 3AD, 3AE या 4 जिनमें भी हैं, या 4 में या 5 में जो भी हैं, इन सब में अगर आपका डोनेशन जो आ रहा है जिसमें डोनर की आइडेंटिटी सामने नहीं आई है तो यू आर लायबल फॉर 30% ऑफ टैक्स। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसमें थोड़ा सा जो फेरबदल है आपको बताता हूं कि कौन कौन से डोनेशन इसमें कवर नहीं होते। अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, मंदिर में मान लीजिए कितना भी पैसा एनोनिमस आएगा वो इस सेक्शन में कवर नहीं होता, क्योंकि मंदिर में आप देखेंगे तो बेसिकली हुंडी लगी रहती है, या लोग आते हैं, बालाजी का मंदिर देखिए, लोग करोड़ों रुपए रोज लेके चले आते हैं, कोई अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करता, तो उसको इस कैटेगरी से बाहर निकाला गया है। लेकिन उसके अलावा कोई ट्रस्ट जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है और कोई डोनेशन, और उसके अंदर चैरिटेबल पर्पस में कोई डोनेशन स्पेसिफिक डायरेक्शन के आ गए हैं, तो उसको छोड़ के बचे हुए जो डोनेशन जिनमें आप आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वहां सब में 30% फ्लैट आपको टैक्स देना है। तो जब भी हम चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट करते हैं या फिर उसका ऑडिट करते हैं या फिर जब रिटर्न भरते हैं, तो आप देखिए कि डोनेशन अकाउंट जरूर खोलिए, क्योंकि जब जब आपको स्क्रूटनी का नोटिस आता है आपसे डोनेशन की पूरी लिस्ट मांगी जाती है। जिस डोनेशन में आप प्रूव नहीं कर पाए कि ये पैसा मेरे को इसी आदमी से, इसी चेक नंबर से, ये उसका एड्रेस से मिला है, सो डिपार्टमेंट विल ट्रीट दैट डोनेशन एज एनोनिमस और स्ट्रेट अवे आपको 30% टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको इसके बर्ड आई व्यू ऑफ पूरा सेक्शन 11 का 2 स्लाइड में बताता हूँ, और उसके बाद एक पर्टिकुलर 2 चीजें और बताता हूँ, सो दैट फिर उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटा हो गया ऑलरेडी। सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रस्ट वी आर कवरिंग हियर? वन इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इंक्लूडिंग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 11(1)(a), एक है 11(1)(b) में, एक है 11(1)(d) थर्ड यानी कॉर्पस डोनेशन। तो अगर आपका कॉर्पस डोनेशन है 11(1)(d) में, तो एप्लीकेशन फॉर इनडेफिनिट पीरियड है, आपको जब मर्जी है जब एप्लीकेशन कीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट जो पहली वाली जो अगर आप एरो देखेंगे तो दोनों ही केस में आपको 85% आपको अप्लाई करना है। अगर आप 85% अप्लाई नहीं कर पाए तो आइदर वो 15% की तो छूट मिलेगी, आइदर आप 11(2) में जाइए, 5 साल के लिए एक्यूमुलेशन कीजिए, और 5 साल में अगर आप उसको नहीं यूज कर पाए तो टैक्स में चले जाइए या फिर री एप्लीकेशन कीजिए। लेकिन दूसरा जो 15% का नॉर्मल एक्यूमुलेशन है वो आपको ऑलवेज अवेलेबल है, उसके लिए आपको कोई तरह का फॉर्म नहीं भरना है, और वो एक्यूमुलेशन फॉर ऑलवेज फॉर इनडेफिनिट पीरियड रहता है। आप हर साल 85% खर्चा कीजिए, 15% एवरी ईयर यू एक्यूमुलेट, यू वोंट बी टैक्स्ड। और मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो एज पर सेक्शन 11(5) रहेगा, लेकिन सेक्शन 13 की आपको उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये चार्ट के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा किस किस तरह से आपको इनकम को अप्लाई करना है, कितना आपको ये करना है। इसमें एक सेक्शन और है 11(1)(2). कोई केस में आपका ट्रस्ट को समझिए 31 मार्च को या मार्च के महीने में, जनवरी फरवरी मार्च में समझिए ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए आ गए कोई खर्चे करने के लिए, और समय नहीं है, आप खर्चा नहीं कर पाए, आपका वो समय खत्म हो गया, तो आपको क्या करना है? आपको एक फॉर्म 9A आता है, फॉर्म 9A यू हैव टू फाइल बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। उसमें आपको बोलना है कि ये पैसा क्योंकि हमको ईयर एंड पे ऐसे इस कंडीशन से आया है, वी कुड नॉट अप्लाई इट, वी विल अप्लाई फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप फॉर्म 9A फाइल कर देंगे तो जितना पैसा फॉर्म 9A में लिखेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज योर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लेकिन वो 9A का जो पैसा है वो पैसा अगले साल आपको यूज करना ही करना है। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो यू विल बी चार्ज फॉर टैक्स। मैनी अ टाइम रिटर्न भरते समय हम प्रोफेशनल से गलती होती है, मैं हम वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मली गलतियां होती है हमसे। जब हम सेक्शन 11(2) के अंदर एक्यूमुलेशन करते हैं तो हम कई बार बाय मिस्टेक 11(1)(2) के अंदर फॉर्म में लिख देते हैं या ऑडिट रिपोर्ट में लिख देते हैं। और अगर आपने 11(1)(2) में एक बार लिख दिया तो आप कुछ भी हो जाए उस मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर सकते। तो जब ऑडिट रिपोर्ट आप बनाते हैं तो क्योंकि दोनों कॉलम ऊपर नीचे ही हैं, तो प्लीज टेक केयर कि अगर आप 11(2) के अंदर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं फॉर्म नंबर 10 में, तो उसका पैसे का उल्लेख फॉर्म नंबर 10 का वहां कीजिए 11(2) के अंदर।
अगर आप फॉर्म 9A फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 11(1)(2) में ही उल्लेख कीजिए, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड हैं और आपकी इनकम कोई कारण से सेक्शन 1023 या 1026 में एग्जेम्प्ट होती है तो आपको सेक्शन 10 के बेनिफिट्स कभी नहीं मिलेंगे। सेक्शन 11 जो 4 जो अमेंडमेंट आया है वो बहुत 11(7) जो अमेंडमेंट आया वो उसी लाइन पे आया है। तो जब तक आपके पास सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन है यू कैन नॉट क्लेम एनी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट आर द रेट्स? कई बार लोग पूछते क्या क्या रेट से क्या लगेगा। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट, कोई रेट नहीं, कोई तरह का टैक्स नहीं है। इनकम नॉट अप्लाइड, मोर देन 15% आपके पास इनकम है, 85% आपने खर्चा करना था नहीं कर पाए तो आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रेट से लगेंगे। अगर आप जो मैंने आपको बताया 31 मार्च के आसपास रिसीव हुई और आप अगले साल खर्चा करना चाहे नहीं खर्चा, अगर आप फॉर्म नहीं दे पाए तो एओपी के रेट से, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। इनकम एक्यूमुलेटेड अंडर सेक्शन 11(2) बट नॉट इन्वेस्टेड और डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट, एओपी के रेट से लगेगा। एक्सेस बिजनेस इनकम असेस्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, एओपी के रेट से लगेगा। 13(1)A एंड 13(1)B अगर आपको एप्लीकेबल हो गए तो एओपी का रेट लगेगा। लेकिन 13(1)C और 13(1)D में अगर आपका केस कवर होता है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगा। और एनोनिमस डोनेशन अगर आया है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड। So taxability of public assets क्या? Income is not exempt under section 11 and 12, सेक्शन 164(2) के अंदर चला जाएगा, यानी एओपी में चला जाएगा। अगर सेक्शन 11, 12 नहीं है तो वहां पे सेक्शन 164(2) में असेसमेंट होगा और एओपी करके होगा। और जब जब ये गलती भी हमारे यहाँ से बहुत होती है लोगों से, जब आपको सेक्शन 11 और 12 के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो यू मस्ट फाइल फॉर्म नंबर 5, प्लीज डू नॉट फाइल फॉर्म नंबर 7। तो फॉर्म नंबर 5 जब फाइल करेंगे तो 164(2) के हिसाब से ऑटोमेटिक आपका रिटर्न चला जाएगा। लेकिन फॉर्म नंबर 7 अगर आपने फाइल कर दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला है तो वो रिटर्न कभी आपका रिवाइज भी नहीं होता और आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसके ऊपर 30% सीपीसी टैक्स लगा के भेज देगा। फिर आप खाली उसके लिए आपको डिफरेंट एपिलेट प्रोविजन में जाकर लड़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा, एग्जेम्पशन आपको मिला लेकिन वो 4 फीट हो गया, एक कंडीशन आई ड्यू टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 13(1)C, 13(1)D और 164(2), तो जो आपका जो भी इनकम आएगी वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से आपको टैक्स लगेगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वन मोर थिंग बिफोर, एक स्लाइड और लीजिए आगे। वेयर इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11, 12, एओपी जो मैंने आपको चार्ट से जो आपको एक्सप्लेन किया, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन और अलग अलग कोर्ट्स के उसके ऊपर डिसीजन है। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी बता दिया। नेक्स्ट, ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का है, लेकिन उसके पहले मैं पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चर्चा कर ले तो उसका एक सेक्शन और 115 TD और उसके बाद आई विल फिनिश दिस। सो हाउ टू कंप्यूट द इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नॉर्मल कंप्यूटेशन की तरह हम उसको बनाते हैं। तो कंप्यूटेशन कैसा होगा? पहले आपको लिखना है ग्रॉस रिसीट एक्सक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन, जितने तरह की रिसीट आई है, रेंट, इंटरेस्ट, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जो जो चीजें आई हैं वो आपको टोटल ग्रॉस रिसीट में लेना है। फिर देन डिडक्शंस। व्हाट इज डिडक्शंस? डिडक्शंस के अंदर जो भी आपके अगर कोई डिडक्शंस होंगे उसके अंदर जो खर्चे आपके छोटे मोटे जो होंगे जो भी वो माइनस हो जाएंगे, तो वो आपका आ जाएगी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, ग्रॉस इनकम। उसमें से क्या क्या मिलेगा? एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन इंडिया, यानी जो भी आपके कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सारे के सारे आपको सेक्शन 11(1)A के अंदर मिल जाएगा। फिर डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम 11(1)A 15% का जो है बेसिक एग्जम्पशन वो आपका उसके अंदर से माइनस हो जाएगा। सेकेंडरी एक्यूमुलेशन सेक्शन 11(2) जो मैंने आपको बताया था कि आप 85% नहीं कर पाए और कई सालों के लिए आपको आगे लेके जाना है तो आप कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल गेन, जो जिससे मैंने आपको ट्रीटमेंट समझा कैपिटल गेन का एक्सप्लिकेशन कैसे होगा उसको आपको अलग से दिखाना है। और एनोनिमस डोनेशन अगर कोई है तो वो भी आपको यहाँ से माइनस करना है क्योंकि वो सेपरेटली हायर रेट से होगा, हायर रेट से टैक्स होगा। और इसके अंदर क्या क्या चीज ऐड हो जाएगी? इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 11(1)B, डीम्ड इनकम, बिजनेस इनकम जो आपने 12(2) के लोगों को जो बेनिफिट दिया है, और इनकम जो प्रॉपर्टी नहीं है उससे जो इनकम हुई है, तो वो जितने चीजें हुई है उसके अंदर जुड़ेगा।
तो जो नेट इनकम आएगा इन सबके बाद में, अगर वो 2.5 लाख के नीचे है तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं है, और अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो यू नीड टू पे टैक्स एज पर AOP rates. Clear? Next is one most important thing is one section was introduced by Finance Act, that 115 TD section. होता कैसा है कि मान लीजिए आपने, इसको बोलते हैं टैक्स ऑन एक्रीडेटेड इनकम ऑफ ट्रस्ट, आइदर कन्वर्जन और कैंसिलेशन ऑफ ट्रस्ट. ये बहुत ज्यादा लोगों ने टैक्स प्लानिंग का टूल बनाया था चैरिटेबल ट्रस्ट को. करते क्या थे, एक आपने चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट किया, 4-5 साल चलाया, खूब सारी इनकम लाए, खूब सारा कॉर्पस डोनेशन लाए, और आपने उसके एग्जाम्पशंस मांगे, और ट्रस्ट आपने 5 साल में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कर लिया. ये बड़ा, ये जो गेम है ये बड़े लेवल पे होता था, छोटे लेवल पे तो किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था. सो उन्होंने क्या किया, एक नया सेक्शन लाए कि अगर आपने ट्रस्ट डिसॉल्व कर दिया या आपका ट्रस्ट सेक्शन 12 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जिस दिन आपका डिसोल्यूशन होगा उस दिन जो इनकम आपने 11 to 12 के अंदर जितनी प्रॉपर्टी खड़ी की होंगी, उस प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यूएशन आएगा माइनस जो आपका बुक वैल्यू आएगा, वो जो पैसा आएगा उसके ऊपर आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी 30% टैक्स देके आपको बाहर होना है. यानी अगर आप ट्रस्ट बंद करना चाहते हैं तो जो आपकी प्रॉपर्टियां बची हैं उसका वैल्यूएशन किया जाएगा. वैल्यूएशन करने के बाद जो पैसा एक्सेस बचेगा उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है. सेम अगर आपका 12AA विड्रॉ कर लिया डिपार्टमेंट ने तो भी सेक्शन 115 TD आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा. ऑल्दो प्रोविजन इज वेरी हार्ड बट इट इज वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट, जो इसको टैक्स प्लानिंग का टूल बना लिया था. लोग उसको चैरिटेबल ट्रस्ट से बाहर निकाल के फिर AOP में कन्वर्ट कर लेते थे. और बहुत सारे, आप अगर चैरिटी एक्ट देखेंगे तो महाराष्ट्र चैरिटी एक्ट तो फिर भी काफी मैं तो बोलूंगा रैशनल है, सुलझा हुआ है, काफी अच्छे प्रोविजन है. लेकिन बाकी जगह तो चैरिटी एक्ट है ही नहीं. कई जगह तो खाली कलेक्टर इसको हैंडल करते हैं. तो वहां पे ये बड़ा अच्छा जरिया था टैक्स प्लानिंग का, और ओवर द पीरियड वो AOP ट्रस्ट कन्वर्ट होकर प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट में कन्वर्ट होता था और पैसा सारा का सारा वो आपस में बांट लेते थे. तो टू ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टी 115 TD वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. उसके अलावा एक ये है कि आपको TDS के सारे प्रोविजन फॉलो होना चाहिए. अमेंडमेंट आ गया है, चाहे आपका 194C हो, 194A हो, कोई भी जिस तरह के जो सेक्शंस हैं वो सभी तरह के फॉलो होना चाहिए. आई थिंक गिवन टाइम में प्रवीण जी, आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल प्रोविजंस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट. ऑल्दो ये सब्जेक्ट इतना लेंथी है कि इसको 6 घंटे भी बोले तो कम पड़ेगा, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी के हिसाब से ट्राई किया है. आप किसी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई कैन आंसर. Thank you, Sudhir sir. Thank you very much for the detailed